السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی اور فرانسیسی صدور کی ٹیلی فونک بات چیت۔ امریکہ تائیوان تعلقات کے حقائق کی فہرست میں ترمیم پر چینی وزارت خارجہ کا رد عمل۔ چین کی میزبانی میں برکس وزراء صحت کے 12ویں اجلاس کا انعقاد۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چینی صدر شی جن پنگ نے 10 مئی کو فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ چین یورپ کے مستحکم اور مثبت تعلقات فریقین نیز مختلف ممالک کے عوام کے مفاد میں ہیں۔ چین فرانس کی اسٹریٹجک خود مختاری کو سراہتا ہے اور امید کرتا ہے کہ فرانس یورپی یونین کے چین سے متعلق درست تصور کو برقرار رکھنے میں کردار ادا کرے گا۔ اختلافات پر قابو پاتے ہوئے مشترکہ مفادات کی بنیاد پر معیشت، تجارت، سرسبز ترقی، ڈیجیٹلائزیشن اور ثقافت سمیت دیگر شعبوں میں چین کے ساتھ تعاون کو فروغ دے گا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ فرانس چین یورپ تعلقات کی مثبت ترقی کے لیے مثبت کردار ادا کرے گا۔ ایمانوئل میکرون نے کہا کہ فرانس یورپ چین تعلقات کے لیے مثبت کردار ادا کرنے پر تیار ہے۔ فریقین نے یوکرین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مذاکرات کے ذریعے امن کے حصول کی حمایت کا اظہار بھی کیا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین ہمیشہ سے امن مذاکرات کو فروغ دینے کی کوشش کرتا آ رہا ہے۔ یورپ کی سلامتی کا یورپی ممالک ہی کے ہاتھوں تحفظ کیے جانے کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گروہی محاذ آرائی سے ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ عالمی امن و امان پر مزید سنگین اور طویل مدتی خطرات سے بچا جا سکے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان چاؤ لیجیان نے 11 تاریخ کو یومیہ نیوز بریفنگ میں کہا کہ چین امریکہ اقتصادی اور تجارتی تعاون کا نچوڑ باہمی مفاد اور جیت کے نتائج ہیں، جبکہ تجارتی اور ٹیرفز کی جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ امریکہ کا یک طرفہ طور پر محصولات کا نفاذ چین، امریکہ اور دنیا کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ تجارتی جنگ نے امریکی کمپنی اور امریکی صارفین کو نقصان پہنچایا ہے۔ ٹیرف کے نفاذ کے بعد امریکی کمپنیوں کو $1.7 ٹریلین سے زائد کا نقصان ہوا ہے اور امریکی گھریلو اخراجات میں سالانہ $1,300 کا اضافہ ہوا ہے۔ تجارتی محاذ آرائی کے محض 3 سالوں میں امریکہ نے 2,40,000 سے زائد ملازمتیں کھو دی ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس بات کا مضبوط اشارہ ہے کہ تجارتی جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ یہ مناسب وقت ہے کہ امریکی حکومت جلد از جلد ان اضافی محصولات پر نظر ثانی کرے اور انہیں ہٹائے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ویب سائٹ پر امریکہ تائیوان تعلقات کے حقائق کی فہرست میں کی جانے والی حالیہ ترمیم کے حوالے سے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان چاؤ لیجیان نے 10 مئی کو منعقدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ تاریخ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی، حقائق سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور درست اور غلط کو توڑ مروڑ کر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ چاؤ لیجیان نے نشاندہی کی کہ دنیا میں صرف ایک چین ہے۔ تائیوان چین کی سرزمین کا ایک ناقابل تنسیق حصہ ہے اور عوامی جمہوریہ چین کی حکومت واحد قانونی حکومت ہے جو پورے چین کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ عالمی برادری کا عمومی اتفاق رائے اور عالمی تعلقات کا تسلیم شدہ اصول ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ نے چین امریکہ 3 مشترکہ اعلامیوں میں تائیوان کے معاملے اور ایک چین کے اصول کی پاسداری کا عہد کیا ہے۔ اب امریکہ کی جانب سے امریکہ اور تائیوان تعلقات کے حقائق کی فہرست میں کی جانے والی موجودہ ترمیم ایک چین کے اصول کو غیر مؤثر اور کھوکھلا کرنے کا ایک اوچھا اقدام ہے۔ تائیوان کے مسئلے پر اس قسم کے سیاسی جوڑ توڑ اور آبنائے تائیوان میں صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش یقیناً اپنے آپ کو آگ میں جھونکنے کے مترادف ہے۔ امریکہ کو ایک چین کے اصول، چین امریکہ کے درمیان طے پانے والے 3 مشترکہ اعلامیوں اور تائیوان کے معاملے پر چین کے ساتھ کیے گئے سیاسی وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ نیز صدر بائیڈن کے اس بیان پر عمل درآمد کرنا چاہیے کہ امریکہ تائیوان کی علیحدگی کی حمایت نہیں کرتا ہے۔ 10 مئی کو گائیڈڈ میزائل کروز USS پورٹ رائل نے آبنائے تائیوان کے راستے سفر کیا اور اس کی عوامی تشہیر بھی کی۔ اس حوالے سے چینی پیپلز لبریشن آرمی کی ایسٹرن تھیٹر کمانڈ کے ترجمان کرنل شی ای نے کہا کہ چائنا پیپلز لبریشن آرمی کی ایسٹرن تھیٹر کمانڈ نے اس پورے عمل کی مکمل خبر رکھنے اور اس کی نگرانی کے لیے فوجی دستوں کو منظم کیا ہے۔ امریکہ اکثر اس طرح کا ڈرامہ کرتا ہے، مسائل کو ہوا دیتا ہے
تائیوان کی علیحدگی پسند قوتوں کو غلط پیغام دیتا ہے اور جان بوجھ کر آبنائے تائیوان میں کشیدگی کو بڑھاتا ہے، لیکن ایسٹرن تھیٹر کمانڈ کے دستے ہر وقت مکمل چوکس اور ہوشیار رہتے ہیں، تمام خطرات اور اشتعال انگیزیوں کا بھرپور انداز میں مقابلہ کرتے ہیں اور قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل دفاع کرتے رہیں گے۔ چین نے برکس کی گردشی صدارت کے تحت 10 مئی کو برکس وزراء صحت کے 12ویں اجلاس کی کامیاب میزبانی کی۔ برکس وزراء صحت اور WHO کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل سمیت 70 سے زائد افراد نے ورچوئل اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں بڑے پیمانے پر متعدی امراض کی روک تھام کے لیے قومی ارلی وارننگ سسٹم سے متعلق کام شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ برکس ممالک کے نمائندوں نے کووڈ-19 کی روک تھام اور کنٹرول، صحت کے نظام کی تعمیر اور ڈیجیٹل صحت جیسے موضوعات پر گہرائی سے تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں اصولی طور پر برکس وزراء صحت کے 12ویں اجلاس کا اعلامیہ منظور کیا گیا۔ چین کے قومی صحت کمیشن کے ڈائریکٹر ما شاوئی نے 2011 میں بیجنگ میں برکس وزراء صحت کے پہلے اجلاس کے انعقاد کے بعد ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ چینی حکومت سائنسی پیمانے اور مؤثر روک تھام کے تحت عوام اور زندگی کو اولین ترجیح دے رہی ہے اور وبا کی روک تھام اور کنٹرول اور اقتصادی ترقی کو مربوط کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہی ہے۔ علاوہ ازیں چین نے انسداد وبا مواد اور ویکسین کی فراہمی، طبی ماہرین کی ٹیمیں بھیج کر اور دیگر عملی اقدامات کے ذریعے عالمی انسداد وبا تعاون میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ تاحال چین نے 120 سے زائد ممالک اور عالمی تنظیموں کو ویکسین کی 2.2 بلین سے زائد خوراکیں فراہم کی ہیں۔ چین نے برکس ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ اس وبا کے خلاف جنگ میں اتحاد اور تعاون کا مظاہرہ کریں اور مشترکہ طور پر یونیورسل ہیلتھ کوریج کے حصول کو فروغ دیں۔ 10 مئی کو چین کے سفیر برائے تخفیف اسلحہ لی سونگ کی قیادت میں چینی وفد نے جنیوا میں اقوام متحدہ کے خلا کے لیے ذمہ دارانہ ضابطۂ اخلاق کے اوپن ورکنگ گروپ کے اجلاس میں شرکت کی۔ سفیر لی سونگ نے خلا میں سلامتی کی صورتحال اور ہتھیاروں کی دوڑ کی روک تھام کے بارے میں چین کے خیالات اور تجاویز بیان کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ خلا کے مشترکہ اور عالمگیر سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے عملی طور پر کام کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ خلا میں سب سے اہم ذمہ دارانہ رویہ سپر پاورز کا یہ عزم ہے کہ وہ خلا پر غلبہ حاصل نہ کریں اور خلا پر تسلط کی کوشش نہ کریں۔ انہوں نے تمام ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ کسی بھی وجہ سے اسپیس کنٹرول معاہدے کے مذاکرات میں رکاوٹیں ڈالنا بند کریں اور ذمہ دارانہ طریقے سے مذاکراتی عمل میں شامل ہوں۔ 10 مئی کو سری لنکا کے صدر کے پریس آفس کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ پورے ملک میں کرفیو کو 12 مئی کی صبح 7 بجے تک توسیع دے دی گئی ہے۔ 9 مئی کو سری لنکا میں جاری احتجاج اور ہنگامہ آرائی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ 10 تاریخ کی صبح 6 بجے تک ہنگامہ آرائی سے 8 افراد ہلاک جبکہ 100 سے زائد مکانات اور 88 گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ 9 مئی کو سری لنکا کے وزیراعظم مہندا راجاپاکسے نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ ان کے حامی اور حکومت مخالف مظاہرین کے درمیان ہونے والی جھڑپ کے باعث انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر کو پیش کر دیا ہے۔ پچھلے ہفتے US فیڈرل ریزرو نے اپنے سود کی بینچ مارک شرح میں 0.5% پوائنٹ کا اضافہ کیا، جس کا مقصد سخت مانیٹری پالیسی سے 40 سال کی بلند ترین افراط زر سے نمٹنا ہے۔ عالمی برادری کو خدشہ ہے کہ اس سے عالمی معیشت اور مالیاتی منڈی کو ایک اور جھٹکا لگے گا۔ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ امریکی ڈالر کے تسلط کی مدد سے اپنا معاشی بحران دنیا کو منتقل کر رہا ہے۔ نئی ابھرنے والی معیشتیں امریکہ کے اس عمل سے بری طرح متاثر ہوں گی۔ امریکی سود کے بینچ مارک میں اضافے سے نئی منڈیوں سے کیپٹل کے اخراج اور کرنسی کی قدر میں کمی کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ دوسری جانب ڈالر کی قدر بڑھنے سے دوسری کرنسیز کی قدر میں کمی ہوگی، جس سے ان ممالک کے عوام کی قوت خرید بھی کمزور ہوگی۔ یوں ترقی پذیر معیشتوں کی اقتصادی بحالی کا عمل مزید مشکل ہوگا۔ ڈالر کی بالادستی کے بعد امریکہ نے دوسرے ممالک کی دولت کی فصل کاٹنے کے پرانے طریقے بہت زیادہ مرتبہ استعمال کیے ہیں۔ جبکہ امریکہ کوانٹیٹیو ایزنگ مانیٹری پالیسی پر عمل کرتا ہے تو نئی معیشتیں بڑی مقدار میں امریکی قرض لیتی ہیں اور ایسٹ ببل بنتا ہے۔ جب امریکی فیڈرل ریزرو شرح سود بڑھاتا ہے تو نئی معیشتوں سے کیپٹل کا اخراج ہوتا ہے، جس سے یہ ببل ٹوٹ کر مانیٹری بحران نیز مالی بحران کا باعث بنتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی معیشت کی حیثیت سے امریکی معیشت
اگر کساد بازاری کا شکار ہوتی ہے تو اس سے دنیا بھی متاثر ہوگی۔ اس خطرے سے پوری دنیا کو بے حد چوکس رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کا دوستی چینل ہے۔ سنتے ہو تو سیائی کو سنیے، چلتے ہو تو چین کو چلیے۔ یہ ہے ہم سب کا ریڈیو، چائنا ریڈیو انٹرنیشنل۔ چین سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے بام عروج پر۔ یہ سفر طے ہوا زینہ بزینہ۔ چین میں جاری سائنسی ترقی کے کمالات، ٹیکنالوجی کی دنیا کے نت نئے واقعات، خبریں، تجزیے، تبصرے اور انٹرویوز، CRI اردو کا خصوصی سلسلہ زینہ بزینہ۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کے بیجنگ اسٹوڈیو سے زبیر بشیر کا محبت بھرا سلام قبول کیجیے۔ آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں زینہ بزینہ۔ سامعین محترم، اس پروگرام میں ہم سائنس سے جڑی مختلف خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج جن موضوعات پر بات کریں گے وہ ہے بیدو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم چین کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اہم خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے ماؤنٹ ایورسٹ پر چین کی جانب سے قائم کیے گئے خودکار موسمیاتی مرکز کی، لیکن ان موضوعات کی تفصیل جانیں گے ایک خوبصورت نغمے کے بعد۔ سو جانے دو، رک جانے دو، لہروں میں کہیں ڈوب جانے دو، لہروں میں کہیں ڈوب جانے دو۔ مجھ سے کہے ایک جل پری، ڈوب جانے دو جل میں کہیں، سو جانے دو، چھپ جانے دو، لہروں میں کہیں ڈوب جانے دو، شور نہ کرو یارو، آنکھ لگی بہل جانے دو یار، جل میں کہیں، جل میں کہیں، جل میں کہیں، جل میں کہیں
जल में कहीं, जल में कहीं, जल में कहीं हो गम दिया और पिया रे गम दिया पिया रे 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 मान कर लई पछान तो जिंद जान भावे जान ना जान मैनू तेरे ते मान कर लई पछान तो जिंद जान दिल मजबूर मेरा की कसूर जाने हुजूर मेरे हुजूर दिल मजबूर मेरा की कसूर जाने हुजूर मेरे हुजूर सनी नहीं जुदाई मेरी हो कमाई जाने खुदाई अक तेरे नाल सनी नहीं जुदाई मेरी हो कमाई जाने खुदाई अक तेरे नाल मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल जानिया मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जा मेहरबान तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जा मेहरबान सामने तू बैठा रहे हर वेले मैं तकदी रहा तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जा वेलकम बैक सामीन मोहतरम, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं जीना बजीना ज़ुबैर बशीर के साथ। सबसे पहले आपकी खिदमत में एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिसका ताल्लुक है बैदू की चीन की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम खिदमात। चीन का तैयार करदा बैदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम यानी BDS मुतनव्वे सनतों के साथ गहराई से मरबूत है और चीन की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए भरपूर खिदमात अंजाम दे रहा है। चाइना सैटेलाइट नेविगेशन ऑफिस के मुताबिक BDS ने चीन की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने में अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, जिससे जाहिर होता है कि इस निज़ाम की एप्लीकेशंस मुसलसल तरक्की कर रही हैं। यह निज़ाम अपनी नुमायाँ कामयाबियों के ज़रिए ज़िंदगी के तमाम शोबों को बाइख्तियार और बासहूलत बना रहा है। इसे ट्रांसपोर्ट, आफात से बचाव, तख़फ़ीफ़ आलूदगी, ज़राअत, जंगलात, मवेशी बानी और माहीगीरी, बिजली और मवासलात जैसी सनतों में गहराई से मरबूत किया गया है और लागू किया गया है। चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के आदादोशुमार के मुताबिक 2021 के आखिर तक चीन भर में BDS पोजीशनिंग फंक्शनिंग का इस्तेमाल करने वाले 1 अरब से ज़ायद यूनिट्स और टर्मिनल्स काम कर रहे थे।
चीन में BDS ने मुल्क के समाजी और इक़्तिसादी शोबे की कलीदी खिदमाती सनतों को बरकरार रखने में अपनी अहमियत का मुजाहरा किया है। नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 2021 के आखिर तक चीन भर में 7.9 मिलियन से ज़ायद रोड ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में BDS नस्ब हो चुका था और मुल्क के रेलवे नेटवर्क पर तकरीबन 8,000 BDS टर्मिनल लगाए जा चुके थे। BDS पर मबनी एप्लीकेशन चीन भर में तिब्बी मराकज़, कोविड-19 की रोकथाम, रिमोट मॉनिटरिंग और ऑनलाइन खिदमात के शोबों में भी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक चीन के 13वें 5 साला मनसूबे की मुद्दत 2016 से 2020 के इख्तिताम तक चीन की सैटेलाइट नेविगेशन इंडस्ट्री का सनती पैमाना 400 बिलियन युआन से तजावुज कर चुका था। 31 जुलाई 2020 को आपको याद होगा कि चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर BDS को शुरू किया था, जिससे BDS-3 सिस्टम को आलमी सार्फिन के लिए बाज़ाब्ता तौर पर खोलने के अमल का आगाज हुआ था। बैदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम मुतनव्वे खिदमात फराहम कर सकता है। इसके अफ़ाल ताकतवर हैं। आलमी सतह पर यह निज़ाम पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग खिदमात सर अंजाम दे रहा है। आलमी पैगाम रसानी की खिदमात और बैनुल अक़वामी तलाश और बचाव की मुहिम्मात में भी बैदू सैटेलाइट नेविगेशन ने अपनी अहमियत को मनवाया है। अगर हम बात करें एशिया बहरुल काहिल खित्ते की, तो इस निज़ाम की खिदमात में इलाकाई मुख्तसर पैगाम रसानी, दुरुस्त पॉइंट पोजीशनिंग, सैटेलाइट पर मबनी नकलो हमल और ज़मीनी बुनियाद पर नकलो हमल में मुआवनत फराहम करना शामिल हैं। तो जनाब, ये थे बैदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की चीन की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में खिदमात के हवाले से एक मुख्तसर रिपोर्ट। और अब बात करेंगे, चीन ने माउंट एवरेस्ट पर खुदकार मौसमियाती मरकज़ कायम कर दिया है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, चीन में इसका नाम कोहे चुमू लांगमा है। इस चोटी को सर करना इंतहाई मुश्किल काम है। हर साल 20 मुहिम्मात इस काम पर रवाना होती हैं। कुछ कामयाब होते हैं और कुछ रास्ते से वापस लौट आते हैं और कुछ अपने ख्वाब की जुस्तजू में हमेशा के लिए इसके दामन में सो जाते हैं। ऐसे जान जोखों के सफ़र पर चीन के मुहक्किकीन ने कामयाबी का एक नया बाब रकम किया और कोहे चुमू लांगमा पर दुनिया का पहला खुदकार मौसमियाती स्टेशन नस्ब किया। अपनी मुहिम के दौरान चीनी साइंसी मुहक्किकीन ने 5 मई बुध के रोज़ 8,800 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर एक खुदकार मौसमियाती मॉनिटरिंग स्टेशन कायम किया, जो इसे चीन नेपाल सरहद पर वाक़ माउंट चुमू लांगमा पर अपनी नोयत का दुनिया का सबसे ऊंचा मकाम बनाता है। पहाड़ के जनूब में 8,430 मीटर की ऊंचाई पर इस निज़ाम का बेस स्टेशन कायम किया गया है। चीनी अकेडमी ऑफ साइंसेस के तहत काम करने वाले तिब्बत प्लेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये सेंटर दुनिया का सबसे बुलंद मुकाम बन चुका है। नए मौसमियाती मरकज़ समेत कोहे चुमू लांगमा पर 8 एवेल्यूएशन ग्रेडियंट मेट्रोलॉजिकल स्टेशन कायम किए गए हैं, जो कि 8,848.86 मीटर की बुलंदी पर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पर चीन की नई जामे साइंसी मुहिम का एक अहम काम है। ITP की एक मुहक्किक ने हालिया दिनों एक इंटरव्यू में बताया कि मॉनिटर किया गया है कि मौसमियाती डाटा साइंसी तहकीक और कोह पैमाई की सरगर्मियों में मदद देगा। आप जानते हैं कि यहाँ पर मौसमियाती सूरत हाल बहुत ज़्यादा सख्त होती है, तो इस मौसमियाती सेंटर के कायम होने से मुहिम जो कि सख्त मौसम में भी इसको चोटी को सर करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर इनको मदद मिलेगी। अच्छा, कुछ मुहिम्मात जो यहाँ पर गईं, उनमें एक 13 रुकनी टीम ने कोहे चुमू लांगमा को सर भी किया और इन्होंने वहाँ पर जो मौसमी रडार है वो नस्ब किया, फिर बर्फ़ की साख्त और मोटाई की पैमाइश की, बर्फ़ के नमूने इकट्ठे किए। फिर इसी तरह से यहाँ जाने वाली एक टीम ने यहाँ मौजूद जो आलूदगी है उसका भी जायज़ा लिया और इस आलूदगी को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, इस हवाले से भी उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के डाटाज जो हैं वो ज़मीनी मरकज़ के साथ शेयर किए। फिर यहाँ पर जिस तरह हमने बताया कि मौजूदा जो मुहिम है इसमें 6 से ज़ायद साइंसी टीमें हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के काम करेंगे। मसलन एक टीम जो है वो यहाँ पर जो इंसानी सेहत पर
एल्टीट्यूड। यहाँ पर काम करने वाली एक तिब्बी टीम जो पीकिंग यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती है वो ये भी देखेगी कि इतनी बुलंदी पर काम करने वाले जो इंसान हैं उन पर इस बुलंदी का क्या असर होता है। उन्होंने 50 रज़ाकारों की एक टीम बनाई है जिन्हें 5200 मीटर, 5800 मीटर, 6350 मीटर और 8848 मीटर की बुलंदी पर तैनात किया गया है। और ये जानने की कोशिश की गई है कि इनका ब्लड प्रेशर और दीगर जो जिस्मानी डाटा है उसकी मदद से कि ये बुलंदी इंसान की सेहत पर किस तरह असरअंदाज होती है। तो ओवरऑल जनाब यहाँ पर इस टीम ने मौसमियाती मरकज़ कायम करने के साथ साथ मुख्तलिफ तहकीकी अमूर शुरू किए हैं जिनके नताइज आने वाले दिनों में सामने आएंगे और हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो साइंस की दुनिया से आज इतना ही। अब बढ़ते हैं खेलों की खबरों की जानिब। खेल और खिलाड़ी खेलों की दुनिया से हम ला रहे हैं आपके लिए मेहनत, जज्बे और जिन्नों की कहानियाँ। अगर जीत की लगन है तो कैसा इंतजार, कुछ नया हर बार। तो सुनते हैं चाइना रेडियो इंटरनेशनल का खुसूसी सिलसिला खेल और खिलाड़ी। सामीन मोहतरम, खेलों की दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। छोटी छोटी खबरें हैं खेलों की दुनिया से। सरबाज अली खान जो हैं दुनिया की तीसरी बुलंदतरीन चोटी पर पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तानी कोहपेमा सरबाज अली खान तीसरी बुलंदतरीन चोटी कंचनजुंगा पर पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। हुंजा से इनका ताल्लुक़ है। सरबाज खान जैसे ही इस चोटी को सर करेंगे तो वो 8000 फुट बुलंद 14 चोटियों में से 10 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन जाएंगे। काउंटी क्रिकेट की बात करें जो इंग्लैंड में जारी है तो वहाँ पाकिस्तानी खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने एक इनिंग्स में 6 विकेटें हासिल कर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी काउंटी क्रिकेट में अपना भरपूर अंदाज में लोहा मनवा रहे हैं। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलवी टेस्ट टीम के कप्तान पेट कमिंस की, जिन्हें पाकिस्तान से जाने के बावजूद पाकिस्तानी बारबेक्यू की याद जो है वो बहुत ज़्यादा सताने लगी है। उन्होंने पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर कहा कि मैं बारबेक्यू से लुत्फ़अंदोज़ होता था और पाकिस्तानी बारबेक्यू जो है वो मुझे बहुत भाया और वो आज भी इस जायके को याद करते हैं। और अब कुछ तस्करा करते हैं फुटबॉल का। फुटबॉल के आलमी मेले फीफा वर्ल्ड कप 2022 का इनकाद जो है वो रवां साल कतर में होगा, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से शायकीन की एक बड़ी तादाद कतर आना चाहती है। फीफा को 18 दिसंबर को खेले जाने वाले वर्ल्ड कप फाइनल के लिए अब तक 30 लाख टिकटों की दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर में खेले जाने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 के मैचेस देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद की जानिब से दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 18 दिसंबर को होने वाले मुकाबले के लिए अब तक जो दरख्वास्तें हैं वो रिकॉर्ड तादाद में मौसूल हुई हैं। इसी तरह ग्रुप स्टेज के मैचेस के लिए भी फीफा को बड़ी तादाद में टिकटों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। वर्ल्ड कप 2022 में जो अर्जेंटीना और मैक्सिको का मैच है वो 26 नवंबर को लोज़ाइल के स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां 80,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। लेकिन इस मैच को देखने के लिए 25 लाख दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। इसी तरह इंग्लैंड और अमेरिका के दरमियान खेले जाने वाले मैच के टिकट्स की मांग भी बढ़ चुकी है और इस मैच के लिए 20 लाख लोग मैच देखने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। फीफा के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में लोगों की दरख्वास्तें आने के बाद टिकट्स का फैसला कुर्रा अंदाजी के ज़रिए किया जाएगा। और अभी जनाब ये वर्ल्ड कप जो है वो 21 नवंबर को मुनक़िद होगा और 18 दिसंबर तक कतर में जारी रहेगा। खेलों की दुनिया से इतना ही। मज़ीद खबरों, तर्ज़ियों और तबसरों के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट, पता है urdu.cri.cn। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़ुबैर बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। सजदी कुड़ी दी मां नचदी ओ मेहंदी तां
ਸੱਜਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੱਚਦੀ, ਮਾਂ ਇੰਝ ਨੱਚਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਨੱਚਦੀ। ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਆਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀ ਰਾਣੋ ਸੋਹਣੀ ਗੁੱਤ ਵਾਲੀਏ, ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾ ਛਾਲ ਨੀ ਰਾਣੋ ਸੋਹਣੀ ਗੁੱਤ ਵਾਲੀਏ। ਉਹ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਆਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀ ਰਾਣੋ ਸੋਹਣੀ ਗੁੱਤ ਵਾਲੀਏ, ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾ ਛਾਲ ਨੀ ਰਾਣੋ ਸੋਹਣੀ ਗੁੱਤ ਵਾਲੀਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀਆਂ ਛੱਲਾਂ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀਆਂ ਛੱਲਾਂ। ਹੋ ਗਈ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਨੀ ਰਾਣੋ ਸੋਹਣੀ ਗੁੱਤ ਵਾਲੀਏ, ਮਾਰ ਕੇ ਆਜਾ ਛਾਲ ਨੀ ਰਾਣੋ ਸੋਹਣੀ ਗੁੱਤ ਵਾਲੀਏ। ਉਹ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਆਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀ ਰਾਣੋ ਸੋਹਣੀ ਗੁੱਤ ਵਾਲੀਏ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਆਜਾ ਛਾਲ ਨੀ ਰਾਣੋ ਸੋਹਣੀ ਗੁੱਤ ਵਾਲੀਏ। ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਬਾਜਰਾ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਹਾਏ ਵੇ ਮਾਹੀ ਮੇਰਿਆ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਬਾਜਰਾ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਹਾਏ ਵੇ ਮਾਹੀ ਮੇਰਿਆ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਆਉਣਗੇ ਕਾਗ ਉਡਾ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਵਾਰਾ ਪਾ ਜਾਣਗੇ, ਆਉਣਗੇ ਕਾਗ ਉਡਾ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਵਾਰਾ ਪਾ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਬਾਜਰਾ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਹਾਏ ਵੇ ਮਾਹੀ ਮੇਰਿਆ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਟੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਟੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਖੱਟਦੀ ਮਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀ, ਟੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਖੱਟਦੀ ਮਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਟੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਬੱਲੇ 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 ਨੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖਣੀ ਹੋ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖਣੀ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਾਗਰੀ ਲਵਾਲੇ ਕੋਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖਣੀ ਹੋ, ਕਾਲੀ ਕਾਗਰੀ ਲਵਾਲੇ ਕੋਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖਣੀ। ਚੱਕਦਾ ਬਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਬਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਓ ਬਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਨੀ ਬਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਬਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਨੀ ਬਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਿਆਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਿਆਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਆਉਣ ਮੇਰੀਆਂ ਨੀ ਜਾਣ ਮੇਰੀਆਂ, ਆਉਣ ਮੇਰੀਆਂ ਨੀ ਜਾਣ ਮੇਰੀਆਂ। ਨੀ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾਵਾਂ ਫੇਰੀਆਂ, 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 ਨੀ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾਵਾਂ ਫੇਰੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਅੰਮ ਜਾ ਜਣੀਏ ਨੀ ਅੱਡਾ ਲਾਮ ਜਾ ਜਣੀਏ, ਇੱਧਰ ਅੰਮ ਜਾ ਜਣੀਏ ਨੀ ਅੱਡਾ ਲਾਮ ਜਾ ਜਣੀਏ, ਇੱਧਰ ਅੰਮ ਜਾ ਜਣੀਏ ਨੀ ਅੱਡਾ ਲਾਮ ਜਾ ਜਣੀਏ। ਨੀ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾਵਾਂ ਫੇਰੀਆਂ, ਨੀ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾਵਾਂ ਫੇਰੀਆਂ।
सामीन की महफिल। इस महफिल में शामिल होते हैं सामीन की खतूत, ईमेल, पैगामात और वॉइस मैसेज। CRI और सामीन की मुश्तरका महफिल। अस्सलामुअलैकुम। चाइना रेडियो इंटरनेशनल के बीजिंग स्टूडियोज में सजी सामीन की महफिल में मैं हूं मेज़बान सारा अफजल और मेरे साथ मौजूद हैं और मैं हूं शाहिद अफराज खान। और कैसे हैं आप? जी बहुत अल्लाह का शुक्र है। सबसे अच्छी बात यह सारा साहब कि एक अच्छे मौसम में यहाँ पर वक्त हमारा गुजर रहा है और गैर मुतवक्के तौर पर जो मौसम इंतहाई खुशगवार है इस मई में भी कहा जा सकता है कि मई में हम गालिबन नवंबर का जो मौसम होता है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। मैं पता है कल शाम में जब निकली ना ज़रा बाहर, अभी न्यूक्लिक एसिड टेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा चलो शाम में जाते हैं, छुट्टी थी कल। तो मैं जब बाहर निकलने लगी तो मैंने खिड़की खोल के हाथ बाहर निकाला और फिर मैंने जाके अटैची खोला और मैंने अपना स्वेटर निकाला और वो वापस पहना। और जब मैं बाहर भी थी तो मैंने एक तस्वीर भी खींची इत्तेफाक से, लोग जो सड़क क्रॉस कर रहे थे, कोई एक शख्स ऐसा नहीं था कि जिसने जैकेट्स या गर्म कपड़े ना पहने हों। होता है ना, कुछ लोग कहते हैं नहीं इतनी भी ठंड नहीं, अब आ गई गर्मी तो आ गई, लेकिन सब के सब गर्म कपड़ों में थे। और मैं सोच रही थी कि लिखूं कि ये मई का महीना है और मई के महीने में हम समझो 10 दिन तो गुजर गए तकरीबन। जी ऐसा ही है। और सबसे अच्छी बात यह सारा सबा कि आज का जो प्रोग्राम है मैं चाहूँगा कि हम सामीन को ये पैगाम दें कि अगर और कुछ नहीं कर सकते आप लोग तो अपने जो इनफरादी सतह पर जो है आप पौधे लगाएं। ये आज का बड़ा लाजमी सारा सबा पैगाम बन चुका है, क्योंकि हमने देखा कि मई में एक जानिब अगर चीन में हमें दर्जा हरारत जो है वो 10-12 पर मिलता है तो पाकिस्तान में 49 तक मिलता है। तो ये देखें इंतहाई ख़तरनाक बात है जी। तो। और ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। इसमें हम सब जो है ना सारा सबा क्यों हम थोड़े से आप कह सकते हैं कि कमज़ोर हैं या फिर नाकाम हैं या फिर हमारी कोताही कह लें कि शायद जो है हमारे रवैये जो हैं वो समाजी नहीं रहे। हम ये करते हैं कि हर चीज़ हुकूमत करे। देखें हुकूमत का काम है, ठीक है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, वो अपना काम करती भी है और मज़ीद भी करेगी, लेकिन आप अपने इनफरादी सतह पर तो कर सकते हैं। आपको दरख्त लगाने से कौन रोकता है? देखो दरख्त लगाने की भी बात छोड़ो शाहिद, इनफरादी तौर पर आप ये देखें कि अगर लगाते नहीं है तो हम काट फिर क्यों रहे हैं जी। और काटने की अगर हमें हर तरह से इजाज़त है और उनका कुबाड़ा करने की इजाज़त है तो फिर लगाने के लिए हम दूसरों का क्यों मुंह देख रहे हैं? कूड़ा करकट हम फैलाने से बाज नहीं आते हैं, पानी ज़ाया करने से हम बाज नहीं आते हैं। तो ये काम तो हुकूमतों के करने के नहीं, और ये हमारी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं जो हमने निभानी होती हैं, तभी हम एक अच्छे मौसम का लुत्फ़ उठा सकते हैं। बल्कि वो एक तस्वीर है जो मैं अक्सर देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कितना बड़ा पैगाम है इसमें कि एक दरख्त है सड़क पे काफ़ी बड़ा पुराना सा, और उसके नीचे बहुत से जानवर जो हैं उसके साए में खड़े हुए हैं और इर्द गिर्द शदीद धूप है। और इसी तरह से देखा जाता है कि गाड़ियां, हमारी कोशिश होती है साए में खड़ी करें लेकिन साया फराहम करने की कोशिश नहीं करते हैं। सो आपने प्रोग्राम का आगाज़ ही बड़ा संजीदा कर दिया। हम एक गाना सुन के आते हैं भाई। राज थी अब खुली है, खो गई थी मेरी है बेवजह जो लगी दीवानगी। ना कदम है ज़मीं पे ना कमी है कहीं पे, जिंदगी तेरे आने से हंसी बेखबर रास्तों पे हाथ थामे जो हम चले हैं, धड़कनों में बेखुदी है, पास आए जो हम मिले हैं, जो कभी ना हुआ है जो कभी ना किया है वो सभी हो रहा है इन दिनों। तेरे साथ चला है, तेरे नाम लगा है, मेरा दिल ना मेरा है इन दिनों।
जागने लगी रातें और ख्यालों से बातें, तन्हाई भी पहले सी नहीं, कभी लम्हे रुके हैं, कभी दिन उड़े हैं, करवटें इस तरह तो न थी, ख्वाब है नए नए से तेरी आंखों से देखता हूँ हर घड़ी, हर एक पल में तेरे बारे में सोचता हूँ, जो कभी ना हुआ है, जो कभी ना किया है, वो सभी हो रहा है इन दिनों, तेरे साथ चला है, तेरे नाम लगा है, तेरा दिल ना मेरा है इन दिनों। हम सुबह तू हम नवा, कुछ नहीं तेरे सिवा, बेइंतहा क्यों चाहूं ना। सामीन की महफिल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना गाने से पहले मैंने जिक्र किया था अपने उन सामीन का जो हमें ईमेल करना बिल्कुल नहीं भूलते। अब्दुल गफूर कैसर भाई, सबसे पहले तो शायद हमें मुबारकबाद देते हैं, हमारे भतीजे की शादी थी, यानी उनके बेटे की शादी थी और उसमें वो बहुत मसरूफ़ थे। लेकिन दिलचस्प बात बताऊँ आपको, जी, उन्होंने जो ईमेल हमें लिखी उसमें उन्होंने क्या लिखा है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे बेटे की बारात है और थोड़ी देर बाद ही बारात रवाना होने वाली है। मैंने आप सबको याद रखा, आप सबके लिए दुआएं, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। यानी इन्होंने हमें उस वक्त भी नहीं है भूले, तो हमारी तो बहुत बहुत दुआएं और आपकी इस मोहब्बत और आपके इस प्यार के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। जी, और मैं अपनी जानिब से चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस की जानिब से, FM 98 दोस्ती चैनल की जानिब से, हमारे तमाम स्टाफ की जानिब से और तमाम सामीन की जानिब से अब्दुल गफूर कैसर साहब आपको और हमारे भतीजे को इंतहाई मुबारकबाद और नेक तमन्नाएँ हमारी उनके साथ हैं। और इस नौबहता जोड़े के लिए भी ख़ास तौर पर हम दुआगो हैं कि ये अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। और अब्दुल गफूर कैसर साहब आपको भी ढेरों मुबारकबाद। जी, इतनी बहुत सी मुबारकबाद और इतनी बहुत सी दुआएं, क्योंकि हमारे इख्तियार में फ़िलहाल यही है जो हम वहाँ भिजवा सकते हैं। और हमारे एक और सामीन जो अपने सौती पैगाम के साथ हमारे साथ हैं सामीन की इस महफिल में, उनको हम बिल्कुल मौका देते हैं कि अपने ख़यालात का इजहार करें, फिर हमें गाना सुनेंगे और फिर हम वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन कराची पाकिस्तान से मुखातिब हूँ और चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से जो प्रोग्राम गुज़िश्ता हफ्ते नशर हुए उन पर अपना एक हकीर सा तज्ज़िया तबसरा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। गुज़िश्ता हफ्ते जितने भी प्रोग्राम नशर हुए वो ज़्यादातर ईद उल फितर की मुनासबत से थे और बहुत अच्छे प्रोग्राम थे। कुछ स्टूडियो में थे, कुछ स्टूडियो के बाहर जाकर हम सामीन के लिए रिकॉर्ड किए गए और उसमें एक खुलूस था, चाशनी थी, एक मोहब्बत थी, ईद उल फितर की खुशियाँ थीं जो चाइना रेडियो इंटरनेशनल उर्दू सर्विस के मेज़बानों ने नहायत दिलजमई के साथ इन और बहुत मेहनत के साथ उन प्रोग्रामों को हमारी समाज तक
पहुंचाया और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई इन प्रोग्रामों को सुनकर। चीन शाहराह तरक्की पे जो प्रोग्राम नशर हुआ उसमें भी चीन में ईद की खुशियाँ किस तरह मनाई जाती हैं, मुसलमान चीन में रहते हुए त्यौहार किस तरह ईद उल फितर का मनाते हैं और वहाँ कौन कौन से पकवान पकते हैं, इस हवाले से। फिर स्टूडियो से बाहर बीजिंग स्टूडियो से बाहर एक खुसूसी प्रोग्राम नशर हुआ जिसमें सारा अफजल साहिबा, शाहिद अफराज साहब, ज़ुबैर बशीर साहब, डॉक्टर ज़फ़र साहब और रवात ज़रज़ई साहब ने बहुत उम्दगी से प्रोग्राम हम सामीन के लिए पेश किया, जिसमें लिटिल लाहौर तक का सफ़र था, काबली पुलाव का ज़िक्र था और तमाम ईद के हवाले से आपस में बड़ी बेहतरीन दिलचस्प गुफ्तगू थी। इसी तरह ज़ीना बज़ीना में एक नहायत मोहतरम अदबी शख्सियत, कालम नवीस, ड्रामा निगार, शायर, दानिश्वर, अदीब अबरार नदीम साहब से उनकी गुफ्तगू, सैर हासिल गुफ्तगू सुनी, बहुत अच्छा लगा। सामीन की महफ़िल में सामीन के खुसूसी पैगामात, सौती पैगामात नशर हुए जो बहुत अच्छा महसूस हुआ। सामीन की आवाज़ को सुनकर बहुत अच्छा महसूस होता है और दरीचे सकाफ़त में पाकिस्तान और चीन में ईद की जो खुशियाँ मनाई जाती हैं उस हवाले से बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की गई। स्टूडियो बीजिंग में अम्माद जाफरी साहब जो डिजिटल पाकिस्तान के बानी हैं, उन्होंने डिजिटल राहदारी का जो एक तसव्वुर दिया उसके हवाले से बहुत ज़बरदस्त बातें सुनने को मिली और बहुत खुशी हुई कि चाइना रेडियो इंटरनेशनल उर्दू सर्विस का ये ख़ासा रहा है कि हमारे जो पाकिस्तान में त्यौहार मनाए जाते हैं उस हवाले से खुसूसी एहतमाम होता है प्रोग्रामों का, स्टूडियो से बाहर निकल के होता है। फिर FM 98 पर भी उन प्रोग्रामों को, नित नए प्रोग्रामों को सुनकर बहुत मज़ा आता है उन त्यौहारों की मुनासिबत से। इसी तरह ईद उल फितर के हवाले से वेबसाइट पर और FM 98 दोस्ती चैनल की फेसबुक सफ़े पर वीडियो, ऑडियो और तहरीरी तौर पर बहुत अच्छी तहरीरें, बहुत दिलचस्प तहरीरें, बहुत अच्छे वीडियो, ऑडियो और फ्रीक्वेंसी पर, शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसी पर भी तमाम प्रोग्राम बहुत उम्दगी से और दिलचस्पी से सुने। रमज़ान के बाद कुछ फरागत है तो बहुत अपने जो पसंदीदा मीडियम है यानी शॉर्ट वेव पर, उस पर भी प्रोग्राम सुनने का लुत्फ़ आया। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह। कहीं दायरा बना है, कहीं आखिरी सिरा है, माई बोल बोल हारी, कोई है जो सुन रहा है, ये कोई जाने ना के दिल माने ना, ये कोई जाने ना के दिल माने ना, बिखर जाए ना। ऐसा है जुनून कहीं मिले ना सुकून, देखो कहीं भी करार आए, कहीं भी करार आए। दीवाना है कौन जहाँ बेगाना है कौन, देखो जिंदगी बेकार जाए, जिंदगी बेकार। कोई भीड़ में खड़ा है, कोई खुद में चल रहा है, माई बोल बोल हारी, यहाँ जो है बेसिरा है। ये सातों आसमां हम इनके दरमियां, ये सातों आसमां हम इनके दरमियां बिछड़ जाए ना। ऐसा है जुनून कहीं मिले न सुकून, देखो कहीं भी करार आए। दीवाना है कौन जहाँ बेगाना है कौन, देखो जिंदगी बेकार जाए, जिंदगी बेकार जाए।
कोई नहीं, जहाँ रास्ते ने जोड़ा वहीं फासले ने तोड़ा। माई बोल बोल हारी, यहाँ सब ने हाथ छोड़ा। ये कोई जाने ना ये दिल माने ना, ये कोई जाने ना ये दिल माने ना, बिखर जाए ना। ऐसा है जुनून कहीं मिले ना सुकून, देखो कहीं भी करार आए नहीं भी करार। दीवाना है कौन जहाँ बेगाना है कौन, देखो जिंदगी बेकार जाए जिंदगी बेकार जाए। ऐसा है जुनून कहीं मिले ना सुकून, देखो कहीं भी करार आए नहीं भी करार। दीवाना है कौन जहाँ बेगाना है कौन, देखो जिंदगी बेकार जाए जिंदगी बेकार जाए। ऐसा है जुनून कहीं मिले ना सुकून, देखो कहीं भी करार आए नहीं भी करार। दीवाना है कौन जहाँ बेगाना है कौन, देखो जिंदगी बेकार जाए जिंदगी बेकार जाए ना। सामीन की महफिल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं मैं आपको। मज़े की बात यह है कि पिछला प्रोग्राम जो था उसको मुझे पूरा करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि हमारे पास वक्त महदूद होता है। मैं कही थी कि मेरी कोशिश थी कि सारी ईमेल, सारे वॉइस मैसेजेस जो हैं वो मैं शामिल कर जाऊँ। इस प्रोग्राम को पूरा करना मुझे मुश्किल हो रहा है जो आज का प्रोग्राम है। इसकी वजह यह है कि दोहरानिया तो हमारा वही है, हमारे पास ईमेल्स कोई नहीं है। सही। और ये बात मतलब मैंने क्यों की, वैसे मैं कह देती होती हूँ ये बात जब ईमेल्स नहीं आती कि जो हमारे साथी हैं ना वो ईद की गहमा गहमी से अभी तक निकले ही नहीं है। और इसीलिए मैंने प्रोग्राम में कहा था कि जो हमारे 3 सामे हैं ऐसे कि जिनको पूरा क्रेडिट जाता है, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट तो अब्दुल गफूर कैसर भाई रहे, अरशद कुरैशी और फिर आमिर जमील। और ख़ास बात पता है क्या है, इन्होंने हमारे तमाम तर प्रोग्राम्स पे तबसरा किया है। तो वक्त निकाला और वक्त निकाल कर मुख्तसर सी या तफसीली ईमेल या अपना ऑडियो पैगाम भेजा। तो ये 3 तो पक्के हो गए, हमारे पक्के मुस्तकिल सामे जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। ठीक है ना जी। आमिर जमील कहते हैं कि ईद का खुसूसी शो बहुत ज़बरदस्त था, हम सब ने खूब एंजॉय किया। ईद के हवाले से इतने शानदार प्रोग्राम पेश करने पर हम चाइना रेडियो इंटरनेशनल उर्दू सर्विस का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका आमिर जमील साहब, अरशद कुरैशी साहब और अब्दुल गफूर कैसर साहब। और यकीनी तौर पर ये सारा सब ईद की गहमा गहमी में रेडियो सुनने के लिए वक्त निकालना बाकी एक बड़ी बात है। जैसा आपने जिक्र किया कि ये हमारे सुनने के लिए फिर वक्त निकल आए, जो ईमेल करने के लिए वक्त होता है वो वाकई ज़रा मुश्किल हो जाता है। और इसी से हमारी हौसला अफजाई भी होती है। जैसा कि आपने प्रोग्राम्स की तारीफ़ भी की तो हमें अच्छा लगेगा कि आइंदा भी आप ऐसी ईमेल करते रहा करें ताकि हम इसी हौसले के साथ मज़ीद अच्छे प्रोग्राम तैयार कर सकें। और इन्होंने ईद के हवाले से सामीन की महफिल का जिक्र करते हुए कहा कि सामीन की महफिल तो लाजवाब था। इसमें सामीन की बड़ी तादाद ने अपने वॉइस मैसेजेस और ईमेल्स के ज़रिए खुसूसी प्रोग्राम चूँकि ये था ईद का तो इसमें शिरकत की, प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी चाइना रेडियो इंटरनेशनल उर्दू सर्विस के सामीन से गुजारिश है कि वो इसी जोशो खरोश के साथ प्रोग्राम में अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर शिरकत किया करें। सबने ध्यान से सुन लिया आमिर भाई की बात? जी, और हमारा भी ये पैगाम होगा आज के इस प्रोग्राम से सारा साहबा कि आइंदा जब भी कोई ऐसा मौका होगा तो इसमें हम आपके पैगामात जो हैं ये प्रोग्राम सामीन की महफिल, चाहे पाकिस्तान का कोई त्यौहार हो, कौमी दिन हो, तो आइंदा के बाद ये प्रोग्राम आपकी आवाज़ से ही सजा करेगा। बिल्कुल, आगे भी बड़ी ईद भी आनी है ना, तो ये पहले से आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जिस दिन वो प्रोग्राम नशर होना है, जिस तारीख पे आपने उससे पहले पैगाम भेजना है ना, उस तारीख को नहीं भेजना, उस वक्त तक नहीं हम कर सकते। ईद भी है, यौम आज़ादी भी है, तो आपने बिल्कुल तैयार रहना है। अभी से हमने आपको ये पैगाम दे दिया है। हाँ, वेरी गुड शाहिद। आगे अपनी ईमेल में कहते हैं प्रोग्राम चीन शाहराह तरक्की के आगाज़ में ज़ुबैर बशीर ने अवामी जमहूरिया चीन में दानिशवराना अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और कारोबारी माहौल से मुतालिक नई पेशरफ्त, चीन का पेश करदा ग्लोबल इनिशिएटिव, चीन में यूथ डे और ईद की तैयारियों से मुतालिक मालूमात से भरपूर प्रोग्राम पेश किया। उर्दू सिस्टर्स मालूमात से भरपूर बेहतरीन वीडियोस पेश करी। खासतौर पर आपने इफ़त का जिक्र किया और जो फरमाइश आपने की है आमिर भाई, आपने लगता है इतवार का प्रोग्राम नहीं सुना, बाकी आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है। आपने कहा गुज़श्ता हफ्ते इतने अच्छे प्रोग्राम पेश करने पर, इतनी ज़बरदस्त वीडियोस दिखाने पर बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे।
جی، اور اچھی بات یہ ہے کہ جو ہماری اردو سسٹرز ہیں یہ جہاں بھی جاتی ہیں ان کی کوشش رہتی ہے کہ سامعین کو اپنا ہم نوا بنایا جائے. اور آج کل سارا صاحب آپ نے دیکھا کہ ایک نئی ٹرم چین میں بڑی پاپولر ہو رہی ہے ورچوئل ٹورزم کا، اور یہ وہی ایک دور آ چکا ہے. گھر بیٹھے جو ناظرین ہیں وہ مختلف مقامات کی سیر کر سکتے ہیں. تو ہم اس سے چاہیں گے کہ ایک مستقل سلسلہ اس حوالے سے بنایا جائے اور سامعین کو چین بھر کی سیر کروائی جائے. بالکل. اور اس سلسلے میں بہت سے ایسے علاقے، بہت سے ایسی تہذیبی ثقافتی روایات ہیں جن کو کہ ہمارے سامعین اور ناظرین پہچان چکے ہیں، اب ان کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کر چکے ہیں. مزید آپ چین کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں، مزید آپ کیا سننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ای میل کیجیے گا ہمیں urd@cri.com.cn پر. سامعین کی محفل برخاست کرنے کی اجازت دیجیے گا. میزبان سارا افضل اور شاہد افراز خان کی جانب سے آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جیتے رہیے، خوش آباد رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ایک جگنی، دو جگنی، تین جگنی، چار جگنی، مینوں تیرے نال ہو گیا ہے پیار. جگنی ایک جگنی، دو جگنی، او تین جگنی، چار جگنی، مینوں تیرے نال ہو گیا ہے پیار. جگنی چائنا ریڈیو انٹرنیشنل ایک نئے آغاز کے ساتھ ایک نیا انداز، وہی جوش، وہی جذبہ، وہی ولولہ. میڈیم ویوز، شارٹ ویوز اور FM پر ایک ساتھ ہماری نشریات آپ کے لیے، پاکستان کے لیے. روزانہ صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک FM 98 دوستی چینل پر. اسلام آباد اور لاہور سے ایک ساتھ. چائنا ریڈیو انٹرنیشنل میڈیم اور شارٹ ویوز پر بھی ایک ساتھ، صرف آپ کے لیے، پاکستان کے لیے. صبح 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک شارٹ ویو 7240 کلو ہرٹز اور 9695 کلو ہرٹز پر. صبح 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک شارٹ ویو 9450 کلو ہرٹز اور 11650 کلو ہرٹز پر. رات 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک میڈیم ویو 1422 کلو ہرٹز، شارٹ ویو 9800 کلو ہرٹز اور 11660 کلو ہرٹز پر. اور رات 11 بجے سے 12 بجے تک میڈیم ویو 1422 کلو ہرٹز، شارٹ ویو 7285 کلو ہرٹز اور 9535 کلو ہرٹز پر. اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں، حالات حاضرہ، دلچسپ خبروں، آڈیو ویڈیو رپورٹس، ڈاکیومنٹریز اور نت نئی معلومات کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا فیس بک پیج FM 98 دوستی چینل. CRI کی نشریات میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. ای میل کیجیے urd@cri.com.cn پر. وزٹ کیجیے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی ویب سائٹ urdu.cri.cn. چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، ہر لمحہ آپ کے ساتھ ساتھ.